Students, today we are going to read the first chapter of economics, that is micro and macroeconomics. So analysis of economic problem is generally performed with two viewpoints, that is microeconomic analysis and macro analysis. On the basis of two methods of analysis, economics is divided into two parts in modern times, that is microeconomics and macroeconomics. So microeconomics is related to the study of individual unit such as a person, a firm, an industry, price of a good. And on the contrary, macroeconomics is related to entire economy or to the bigger unit of the economy such as real national income, aggregate expenditure, aggregate saving, aggregate investment, etc. So both this form of economic analysis very popular today. These words are firstly used by Regner Frisch. So economic analysis जो है economic problems के बारे में टू व्यू पॉइंट से उसको स्टडी किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये रिलेटेड होता है इंडिविजुअल यूनिट जैसे वन पर्सन, वन फर्म, वन इंडस्ट्री, इनके बारे में. और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेट करता है बिगर यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा. सो these two words, micro and macro, these words are firstly used by the Regner Frisch. Let's read about the microeconomics and its meaning. So microeconomics is a branch of economic analysis which deals with the study of individual or specific economic unit and a small section of the economy along with their behavior and mutual relationship. These individual economic units may be a particular consumer, particular family, particular firm. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल जो है या स्मॉल सेक्शन ऑफ इकोनॉमी उसकी स्टडी की जाती है, जैसे एक पर्सन के बारे में, वन कंज्यूमर के बारे में, वन पर्टिकुलर फैमिली या वन पर्टिकुलर फर्म के बारे में. With this viewpoint, an industry or a market is not an individual unit, but they can definitely be called as small section of entire economy. An important assumption of microeconomics is that the condition of full employment is considered to exist while performing economic analysis under this. तो यहाँ पे एक assumption जरूर इन्होंने लिया हुआ है. ऐसा माना जाता है, मानते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, और इसी वजह से ड्यू टू दिस अजम्पशन मेजर प्रॉब्लम विच एमर्जेस इज दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, सो द एनालिसिस ऑफ प्राइस थ्योरी बिकम्स द मेन सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो प्राइस एनालिसिस जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट बन जाता है, और इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड नेम जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्राइस थ्योरी. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर शुल्च, द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी. As we read about the meaning of microeconomics, so that we can say the following are the characteristics of the microeconomics. First one is study of individual units. So in microeconomics, study of individual unit or specific unit is done in microeconomics, not related to the study of groups or aggregates. यानी किसी सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की या स्पेसिफिक यूनिट की ही स्टडी यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है. नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ स्मॉल सेक्शन. तो इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट बात की ही गई है, तो इसी से हमें पता क्या चलता है कि इसमें इकोनॉमी के स्मॉल सेक्शन की स्टडी की जाती है. नेक्स्ट वन इज अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. हम लोगों ने अभी पढ़ा था मीनिंग में
कि यहाँ पे कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अज्यूम्ड टू exist while studying the microeconomics. Last one is price theory. Due to the assumption of full employment, major problem that emerge is that the distribution of resources, and this is done on the basis of price. Price theory is the major subject of microeconomics. ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर प्राइस थ्योरी की बात होगी तो वो किससे रिलेटेड होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन किया है फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन का। लेट्स रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट वन इज इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ एंटायर इकोनॉमी। So as various individual economic units jointly make the entire economy, so the economic behavior of this individual unit has an impact on entire economy. Therefore, in order to understand the entire economy, it is essential to perform a detailed study of various individual economic units. तो अगर हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में एक साथ जानकारी लेना है, जानकारी चाहिए, तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल यूनिट की भी हमें जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट का इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, एंटायर यूनिट पे, पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। इसलिए अगर हमें डिटेल स्टडी करनी है तो वेरियस इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की भी स्टडी करनी पड़ती है। तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करने में। Next one is helpful to individual units in taking economic decision in their sphere. So microeconomic provide help to individual units in taking economic decision in their respective sphere. Various problems such as how a consumer spend his money, how should a firm adjust its production and price in such manner that its costs of production is minimum और इट्स प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो ये इंडिविजुअल यूनिट को अपनी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे एक कंज्यूमर अपने मनी को कैसे स्पेंड करे, या एक प्रोड्यूसर अपना जो प्रोडक्शन है और प्राइस इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो और जबकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। नेक्स्ट वन इज इट इज हेल्पफुल इन the analysis of price theory. So microeconomic helps in study of relative price structure, that is the study of most important subject of economics. So price determination of specific goods and services and distribution of specific factor of production can be done only under microeconomics. तो इस तरीके से जो प्राइस थ्योरी कि किसी भी चीज की कितनी प्राइस रखी जाए, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के, यह डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इस बारे में एनालिसिस भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, सेविंग ऑफ ए कंज्यूमर, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन microeconomics. Next one is helpful in increasing the efficiency of individual unit. So by the analytical study of various individual unit employed in the economy, we can know about the faults existing in them and their work efficiency can be improved. तो individual units की क्योंकि स्टडी की जाती है, तो अगर उनमें कहीं कोई फॉल्ट है तो उसको पता लगाया जा सकता है और साथ ही उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लास्ट वन इज इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से क्या होता है कि वो सही तरीके से लॉ फॉर्मेशन कर पाती है, जिससे सभी इंडिविजुअल पर्सन को उससे बेनिफिट्स मिल सके,
इस तरीके से गवर्नमेंट के पॉलिसी फॉर्मेशन में, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मेशन में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है. Let's read about the limitations of microeconomics. So first one is not presenting the correct picture of working of the entire economy. तो microeconomics में हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है, तो इससे हमें पूरे एंटायर इकोनॉमी के बारे में नॉलेज नहीं मिल पाता है. नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन. अजम्पशन हमने देखा था कि एक लिया गया था परफेक्ट कंपटीशन का और फुल एम्प्लॉयमेंट का, तो ये दोनों ही कंडीशन रियल लाइफ में नहीं मिलती है. इस तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बातें हैं वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस्ड करती हैं. नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन एंटायर इकोनॉमी. तो जो भी कंक्लूजन या डिसीजन मिलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से वो एंटायर इकोनॉमी में एप्लीकेबल नहीं किए जा सकते. जैसे यूजुअली द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट आर डिफरेंट फ्रॉम सोशल इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, सेविंग आर गुड विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल बट इज नॉट कंसिडर्ड वाइबल इफ एंटायर सोसाइटी स्टार्ट सेविंग, बिकॉज इफ दिस डन then there will be decline in the demand of consumer goods, reduction in GNP and national income and unemployment will increase. तो अगर सेविंग की बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है सेविंग करना, लेकिन पूरी सोसाइटी अगर सेविंग करती है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी, और कम होगी तो जीएनपी कम होगा, जीएनपी कम हो रहा है तो इस तरीके से नेशनल इनकम कम होगी और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी जनरेट हो जाएगी. तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के जो कंक्लूजन्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो पूरी इकोनॉमी में एक से अप्लाई नहीं किए जा सकते. Last one is study of certain economic problem is not possible under microeconomics. तो जो रिलेटेड करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या मेजर प्रॉब्लम है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट लेवल, नेशनल इनकम, टैरिफ पॉलिसी, ये सारे जो है इनकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं की जा सकती है. तो इस तरीके से ये 4 लिमिटेशंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के.